مولانا فضل الرحمان پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ مغرب کا اصطلاح ہے اور ہم مسلمانوں نے ان کی پیروکاری میں استعمال کی ہوئی ہے۔ موروثی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا انبیاء نبوت میں موروثی نہیں تھی؟ اگر نبوت کا عظیم الشان منصب النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی ابن نبی، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرنا، یہ تو بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم قدم قدم بالش پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم بھی وہاں ان کے پیچھے گھسنے لگو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب اس وقت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی سے زیادہ امن و امان کا قیام ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالات پھر دوبارہ 2007-8 کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے بھی خطرناک؟ کیونکہ اس دفعہ تو کسی کا لحاظ نہیں ہو رہا، چاہے عالمی دین ہو یا کوئی سیاسی کارکن ہو یا کوئی سرکاری۔ 2006 اور 2007 میں صوبے میں مکمل امن و امان تھا، 7-8 مکمل امن و امان تھا۔ اس وقت ہماری حکومت تھی اور چترال سے لے کر کوہستان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک وزیرستان تک کہیں پر بھی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی جو آپ کو رات کے وقت سفر میں پوچھ سکے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ کہیں پر بھی گورنر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، سیکریٹریٹ کے سامنے آپ گزرے، کسی قسم کی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی کہ یہ پوچھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ امن و امان کی صورتحال تھی۔ آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے تھے، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا۔ تو اس وقت صورتحال بالکل ایسی ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، اور اگر اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے رابطہ کیا، بات چیت کی، تو ہم اس حوالے سے ضرور بات چیت بھی کریں گے۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ صوبے میں اس حوالے سے ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تمام دوستوں کے مشورے کے ساتھ اس سارے صورتحال پہ غور کریں اور اس سارے صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کچھ قائدین آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ کے گھر آتے ہیں، پھر اسی دن آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صوبے میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں کریں گے۔ کیا کہ صوبے میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں کریں گے؟ اس طرح دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت کے درمیان ایک زمانہ بہت تلخ گزرا ہے۔ ہم اختلاف کو تو ختم نہ کر سکیں شاید، لیکن اختلاف کے ساتھ جو اختلاف کے رویے ہوتے ہیں اس میں نرمی لا سکیں۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی گوشے سے کوئی تنقید تو ہوتی رہے گی، لیکن ہم تعلقات کو معمول پر لانے، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے، مسلم لیگ سے بھی اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، اے این پی سے بھی ہمارا اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ملتے جلتے ہیں، احترام کا تعلق ہے۔ اور پی ٹی آئی سے بھی اب تقریباً وہی صورتحال بن رہی ہے، ہم مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے نوجوان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے ساتھ، مجھ سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بہت سے مسائل پر وہ اپنا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال اس پہلو کو بھی آپ ذرا اجاگر کریں نا، اگر کسی نے تنقید کی اس کو تو آپ اجاگر کر لیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے پہلو کو آپ کیوں اجاگر نہیں کر رہے؟ فاٹا کے اوپر آپ کا جو سٹانس تھا، فاٹا مرجر کے اوپر آپ کا ایک الگ موقف تھا، مرجر ہوئی، اب جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں پروونشل اور فاٹا کے جو نمائندے ہیں وہ شامل ہیں، ایک آدھ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جو آپ کا موقف تھا وہی صحیح تھا جو اب اس طرح ایک اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ مطلب جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ایک آئینی اور اس طرح کی شکل دیا جا رہا ہے، پھر لوگ بھی جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو فاٹا مرجر ہے وہ ریورس ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ تمام پارٹیاں وہ اس گنگا میں بہہ گئیں کہ فاٹا مرجر پاکستان کے مفاد میں ہے اور یہ ناگزیر ہے
اور ہم چیختے رہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. پورے آئین میں ایک آرٹیکل یا شاید 2 وہ فاٹا سے متعلق تھی. ان 2 کو حذف کیا گیا اور پورا آئین کوئی 200 دفعات کے قریب ان پر لاد دیا گیا اور ڈیبیٹ نہیں ہوئی. بغیر ڈیبیٹ کے آئین میں اتنی بڑی ترمیم کی گئی. ایک ہمارا فاٹا علاقہ ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, انڈیا میں کشمیر کا یہی سٹیٹس تھا تقریباً جو ہمارے ہاں فاٹا کا تھا. پوری دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک وہ ہوں گے کہ جن ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں اور وہ گزارا کر رہے ہیں, اسی سٹیٹس کے تحت وہاں نظام چل رہے ہیں. ہم نے کس کے اشارے پہ کیا, کس کے دباؤ پہ کیا, اور ہماری سیاسی جماعتیں کس کے سامنے سرنڈر ہوئیں؟ مجھے شکایت ہے اپنے بھائیوں سے, اور آج اس کو واپس کرنا ملکی مفاد ٹھہرا. سو غلط فیصلہ تھا, ان کو تسلیم کر لے جانا چاہیے پوری تمام سیاستدانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو اور اس وقت کے حکمرانوں کو, کہ ان کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے. ان کی نظر صرف ناک کے نوک تک پہنچتی ہے, اس سے آگے نظر نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی بصیرت دور اندیشی ہے. ہمیں اندازہ تھا, اندازہ ہی نہیں یقین تھا کہ نہیں چلے گئے نظام. آپ مجھے بتائیں, میرے ساتھ وعدہ کیا کہ مرجر سے متعلق جو دفعات ہیں, جو نکات ہیں, وہ ہم واپس لیں گے. آپ صرف ایک بات مان لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کو کے اختیارات کو فاٹا تک توسیع دی جائے. صرف ایک بات مان لیں. میں نے ان سے کہا کہ پھر پشاور ہائی کورٹ کی توسیع کا کیا مطلب؟ یہ تو مرجر ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی توسیع کیوں نہیں کر رہے فاٹا تک؟ وفاق کے زیر انتظام ہے اور وفاق کی عدالت جو ہے وہ بہت دور ہے. میں نے کہا بینچ بنتے ہیں, آپ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بنا دیں پشاور میں, فاٹا میں بنائیں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ عدالتوں میں 2 طرح کے مقدمے آتے ہیں. ایک فوجداری ہوتا ہے, وہ تو چلو روزمرہ کے واقعات سے متعلق ہوں گے. ایک دیوانی ہے. دیوانی مقدمات کے لیے لینڈ ریکارڈ ہونا چاہیے. 125 سال سے فاٹا میں کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہے, کوئی بندوبستی نظام نہیں ہے. آج 8 سال گزر گئے, ایک پٹواری نہیں جا سکتا, جائے گا تو کرے گا کیا؟ اور عدالت ہی کس لیے لے جا رہے ہیں ادھر جب دیوانی کیس ہی وہاں پیش نہیں ہو سکے گا؟ اس وقت تک بھی وہاں پر کوئی نہ قانون گو جا سکتا ہے, نہ کوئی پٹواری جا سکتا ہے, نہ زمینوں کی تقسیم ہو سکتی ہے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے ذرا تھوڑا سا مزہ بھی لے لیں نا آپ لوگ. ایک صوبے کے بڑے افسر نے مجھے کہا کہ یہ وہ لینڈ ریکارڈ ہم بنا رہے ہیں, وہ زمینوں کی تقسیم ہو رہی ہے. میں نے کہا کہاں, کون کر رہا ہے؟ کہتے سیٹلائٹ سے ہم تصویریں لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ سیٹلائٹ سے نیچے زمین بھی اترنا پڑے گا یا نہیں؟ جی ابھی تو پوری بات سمجھ میں تو آ جائے نا. کمیٹی بنائی ہے, اس میں پشتون کتنے ہیں مجھے بتایا جائے, اس میں صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ کتنے ہیں.
तमाम सियासी पार्टियों में सिर्फ मुझे कहा गया है कि आप अपनी पार्टी नुमाइंदा दे दें ताकि उसमें आप फरीक हों। आप फरीक थे उस वक्त, हमें फरीक तस्लीम किया जा रहा है। इस वक्त हमने अपना नुमाइंदा नहीं दिया उनको। हम इस पर गौर कर रहे हैं मज़ीद कि है क्या, हम मालूम करना चाहते हैं। और आज मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने कि कल और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप मशावरत दें, आप राय दें। हमने पहले भी जो फैसले करना चाहे वो फाटा के अमायदीन के मशवरे से करने चाहे, और आज भी हम अगला फैसला करेंगे तो फाटा के अमायदीन के मशवरे से करेंगे। तो कल इंशाअल्लाह बड़ा ग्रैंड किस्म का बड़ा जरगा कबाइल का होगा, और ये हकीकी कबाइल हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4000 कबाइली नुमाइंदे, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग और हर तबक़े फ़िक्र के लोग शामिल थे। 4000 लोग जिन्होंने अहदनामा लिखा, और उस अहदनामे में कहा गया कि इसके बाद यही जरगा कबाइली जरगा कहलाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा कबाइली जरगा नहीं होगा। लिहाजा उसके बाद अगर कोई कबाइली जरगे बने हैं तो सद एहतराम उन कबाइली लोगों के लिए, उन मुशरान के लिए सद एहतराम, लेकिन उनके अपने ही जो अहद पैमान था ये उसकी खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने एहतराम नहीं किया अपने जरगे का। अपने जरगे का एहतराम करे। कबाइल और पश्तून इसी चीज़ का नाम है कि वो जरगे का एहतराम करते हैं, और जब एक दफ़ा वो हाँ कर दे किसी बात पर तो फिर वो हाँ होती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। लिहाजा इंज़िमाम का मसला नहीं था। ये बात उन्वान भी मेरे नज़र में गलत है। बात कबाइल के सियासी मुस्तक़बिल की थी। सुनो बात बेटा, कबाइल के सियासी मुस्तक़बिल की थी। तजवीज़ आई थी कि इंज़िमाम किया जाए। हमने कहा नहीं, कबाइल को इख्तियार दो। वो इंज़िमाम की हिमायत करते हैं, वो इस पुराने स्टेटस को बरकरार रखने की हिमायत करते हैं, या वो एक अलग सूबे का हिमायत करते हैं। अब क्या तजवीज़ है उनकी नज़र में? क्यों उनको ये ख्याल आया? क्या ये वाक़अतन अपने उस साबका फैसले पर नदामत की अलामत है? क्या ये अपनी नाकामी का एतराफ़ है, या कबाइली पहाड़ों में मादनी वसाइल तक रसाई का एक नई चाल है? ये सारी चीज़ें देखने मौलाना साहब ये बताएं कि आज हम देख रहे हैं कि सूबे के सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक याई खान से वो याई खान नहीं जा सके, और पूरी सूबाई हुकूमत मुंतखब अरकान वो आज पंजाब में घूम फिर रहे हैं। जिस वक्त बाजवड़ का वाक़या होता है उसी दिन वो हुकूमत में 27 पार्लिमानी सीट ही शामिल कर रहे हैं। तो क्या ये सेनेट और ये चीज़ें पंजाब में अहम है कि हमारी सूबे के सिक्योरिटी सूरत हाल हुक्मरान जो है जमात ये क्या तरजीह? हमारे सूबे का पैसा सिर्फ इसलिए है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए जाएँ, काबीना में तोसी की जाए, मराआत में इजाफे किए जाएँ, और अय्याश ज़िंदगी गुजारने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएँ, और गरीब आदमी जाए जहाँ जाए उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये चीज़ें वो सवालात पैदा कर रही हैं आम आदमी के अंदर कि ये हुकूमत नहीं है, ये भत्ते देने वाली हुकूमत है। ये मुसल्लह लोगों को बाकायदा माहाना भत्ते भेजती है, और तब जाकर फिर हम डेरे इसमेर खान भी जा सकते हैं और हम पेशावर भी आ सकते हैं। और अल्लाह का फजल है। आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ, कौम को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी इस जुर्म में शरीक नहीं हो। मैं उस पर बात इसलिए नहीं करूँगा कि सूबे का हर बच्चा मेरे लिए असजद है। जो मेरे बच्चों के साथ पूरे मुल्क में हो रहा है, जो बाजवड़ में हुआ, जो महमद में हुआ, जो तिरा में हुआ, जो कुरम एजेंसी में हो रहा है, जो औरंगज़ेब में हो रहा है, वज़ीरिस्तान में हो रहा है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर हो रहा है, टांक में हो रहा है, डी खान में हो रहा है, जो भी हमारे इस सूबे का या इस मुल्क का बच्चा जुल्म का शिकार होता है, या बलूचिस्तान में कोई बच्चा हमारा
जुल्म का शिकार होता है, वो सब मेरे लिए असदत की हैसियत रख मेरी औलाद की तरह हैं। मैं अपने बेटे की मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मौलाना साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया बिजली नहीं मिल रही है, पाकिस्तान में तीन सूबे जुल्म का शिकार होता है, या बलूचिस्तान में कोई बच्चा हमारा जुल्म का शिकार होता है, वो सब मेरे लिए असदत की हैसियत रखते हैं, मेरी औलाद की तरह हैं। मैं अपने बेटे की मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मौलाना साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया बिजली नहीं मिल रही है, पाकिस्तान में तीन सूबे। अगर मैं वफाकी हुकूमत के फैसलों से मुतमईन होता तो मैं शामिल न होता। पीडीएम का सदर उधर है और हुकूमत उधर है। उन्होंने हजरत हुकूमत पूरे मुल्क में, चाहे वफाक की हो विधानदी की है, चाहे सूबे की हो विधानदी की है, असम्बलियाँ बिकी हैं, बाकायदा मनसब बिके हैं। अब मैं इस बिकाऊ हुकूमत के साथ का हिस्सा बनूं, लेकिन हालात मुल्क के बनते हैं। अगर मुल्क पर जंग मुसलत होती है, इंडिया हमला करता है, हज़ार मेरे शिक पे मौजूद हों, लेकिन वतन की दिफा के लिए हमें फिर एक कौम बनना पड़ता है, एक सफ़ बनना पड़ता है। मौलाना साहब, कबीली अजला के हवाले से आपने तफसीली बात की है, लेकिन वहाँ के सूरत हाल के मतलब न तो ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत उन कर रही है, न वफाकी हुकूमत उन कर रही है। सूबाई हुकूमत कबीली अजला की सूरत हाल की जिम्मेदारी वफाक पे डाल रही है, वफाक सूबे पे डाल रही है। कोई अमन के हवाले से दोनों सही कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं। तो दूसरा गिला सर आपसे है मौलाना साहब के बाकी दुनिया मुस्लिम ममालिक में जो जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, पूरे मुल्क में मुजाहरे होते हैं, कबायली अजला में कश्मीर जैसा माहौल बना हुआ है, गजा जैसा माहौल है, ड्रोन्स आ रहे हैं, वाटर घोड़े गिर रहे हैं, आम शेर ही मर रहे हैं, तो क्या आपका राय अमल है? आप इस सवाल से क्या करेंगे? ठोस इक़दाम उठाएंगे? जमीयत उलमा इस्लाम से बढ़कर मिलियन मार्च किसने किए हैं सूबे में? बलूचिस्तान और सिंध में जमीयत से बढ़कर मिलियन मार्च किसने किए हैं? चाहे बैनुल-अक़वामी मामलात हो, वो भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी हमारे ऊपर हक़ है। और उनको पाकिस्तान से उम्मीद होती है कि ये एक वाहिद सरजमीन है इस्लामी दुनिया की कि जहाँ से हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद हो सकती है। तो हमने अगर फ़िलिस्तीन की बात की है तो वो भी बते मुसलमान के उसका हम पर हक़ था। अगर हमने अपने मुल्क में अपने गरीब की बात की है, अमन व अमान की बात की है, और जिसके लिए जिस तरह हम फ़िक्रमंद हैं, खुदा करे सब उस तरह फ़िक्रमंद हो जाएँ। तो हमने तो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई हुई। और ये जो पेशावर में हमने मिलियन मार्च किया था, आपकी नज़रों में था, उसकी क्या अवामी पज़ीराई थी वो आप सब जानते हैं। इसीलिए कि अवाम शिकस्त न खा जाए, अवाम के हौसले पस्त न हो जाए, अवाम के हौसले बुलंद रहें। तो लोगों के मोराल को ऊंचा करने के लिए, उनमें जुर्रत और हिम्मत पैदा करने के लिए ये जलसे मुआविन और मुमित साबित होते हैं। अभी हमने चंद दिन पहले बटग्राम में किया, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लोग जब से जलसों के लिए अपने घरों से उतरते हैं तो कितनी मशक्क़त के साथ जलसागाह में पहुंचते हैं, लेकिन पूरे मैदान में और सड़कों पर तिल धरने की जगह नहीं थी। तो ये कबूलियत जो जमीयत उलमा इस्लाम को हासिल है, इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े जलसे करता है तो लोग कहते हैं जी हुकूमत आने वाली है। अगर नवाज शरीफ बड़े जलसे करता है और लोगों की पजीराई जलसों में उनको हासिल होती है तो अलामात होती हैं कि हुकूमत आ रही है। अगर बेनज़ीर भुट्टो वो जलसे करती है और आवाम की पजीराई जलसों में मिलती है तो आगे आने वाले हालात में जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इज्तिमाआत की सूरत में अवामी पजीराई के हवाले से क्यों रास्ता रोका जा रहा है? क्या कोई जमहूरी तब्दीली की बजाय किसी इनकलाबी तब्दीली का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये अवाम इसी तरह बैठे रहेंगे, खामोश बैठे रहेंगे, जलसा करेंगे और बस ख़त्म हो गई बात? अगर अवाम की ताईद हमारे साथ है, किसी के बाप को भी यह हक़ हासिल नहीं है कि वो हमारी हुकूमत का रास्ता रोक सके। और हम लजाजत के साथ बूटों के हुजूर बैठकर इक़्तिदार नहीं मांगेंगे। जो आइन कहता है अवाम का फ़ैसला, अवाम के फ़ैसले के इंतज़ार में हैं हम। इंशाअल्लाह अवाम का फ़ैसला जमीयत उलमा इस्लाम के हक़ में। एक बार फिर तैयारी की जा रही है इस्लामाबाद पर चढ़ाई, मीटिंग भी हो रहा है, कन्वेंशन भी हो रहा है। पाकिस्तान जलील साहब अपने कायद को रिहा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इस दफ़ा कामयाबी होगी या वो पहला वाला
देखिए, मैं इसमें बड़ा मोहतात किस्म का तबसरा करना चाहूँगा। जहाँ तक कायद की रिहाई का ताल्लुक़ है, मैं सबसे पहले हिमायत कर चुका हूँ कि कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासतदान जेल जाता है, ऐसा भी नहीं कि सियासतदान जेल नहीं जाता। हम लोग जेलों में गए हैं, साल हर साल अपने जेलों में गुजारे हैं। जेल जाता है, लेकिन तहरीकें सिर्फ रिहाई के लिए नहीं हुआ करती, तहरीकें अज़ीमुस्शान मकासद के लिए हुआ करती हैं। और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना, आवाम की हालत ज़ार को से उनको बाहर निकालना, उनको खुशहाली का माहौल देना, उनमें एक हौसला बुलंद करना, ये मकासद होने चाहिए। हम जेलों से बाहर आते हैं तो हमारी सियासतदानों का आम वतीरा ये है कि फिर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी वजह से जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, अवाम कमज़ोर हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो जाती है और वो समझते हैं कि हम ही फैसला कन क़ुव्वत हैं, अवाम की कोई हैसियत नहीं। मौलाना साहब, पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सियासतदान बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसन के सूबे की निहायत ही मायूस है। क्या देख रहे हैं इस मुस्तक़बिल को बनेगा? इस मुस्तक़बिल का इलाज एक ही है कि जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत कायम करो। न रिश्वत रहेगी, न भत्ते रहेंगे, न बदअमनी रहेगी, मुलाजमतों के दरवाजे खुल जाएंगे, मईशत बेहतर हो सकेगी। मईशत बेहतर करने के लिए माहौल चाहिए, उसके लिए बसीरत चाहिए, उसके लिए हिकमत अमली चाहिए। और जो लोग सिर्फ मफादात को सामने रखते हुए, कुर्सी को मद्देनज़र रखते हुए और सिर्फ अपनी कुर्सी के मकासद के लिए जो है और अय्याशियों के लिए सियासत करते हैं, वो कभी आवाम के मुरादों को पूरा नहीं कर सकते। सहाफ़ियों के लिए आप तारीख़ देख लें, पेशावर में दुरानी साहब के दौरान में सहाफ़ियों के साथ क्या क्या किया गया था, उससे बढ़कर होगा इंशाअल्लाह। एक चीज़ बात सुने ज़रा एक बात सुने। सितंबर में 21 तारीख को मर्दान में हम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इसी तरह डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान में इंशाअल्लाह। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, आम आदमी गैर महफूज है। KP में तब्दीली की ख्वाहिश है मगर PTI अक्सरियत में है। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या एडजस्टमेंट होती है कुछ कह नहीं सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मल नहीं हो सकता। 2006 में KP में अमन व अमान कायम था, कोई चौकी नहीं थी। फाटा का इंतज़ाम गलत फैसला था, सियासतदानों को तस्लीम कर लेना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कबाइल का ग्रैंड जिरगा कल दोबारा बैठेगा, जिसके बाद मुशावरत का फैसला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।